बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यूनिट नंबर 1 की मिसलिनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ स्टार्ट। मिसलिनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देयर आर 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज द राइट वन। Standard form of a quadratic equation is either bx plus c is equal to 0 where b is not equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, and the third option is ax square is equal to bx where a is not equal to 0, and the fourth option is ax square is equal to 0 where a is not equal to 0. हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मींस बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, द सेकंड वन is the second part is the number of terms in a standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is either first option is 1, either 2, either 3, either 4. अब इसमें कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं? ax स्क्वायर एक टर्म है, bx दूसरी टर्म है और c तीसरी टर्म है. इट मींस there are 3 terms, so C is the right option. Okay, the number of method to solve a quadratic equation is, अब कितने मेथड हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि there are 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट वन इज द factorization, second one is by completing square, and third one is by using quadratic formula. So C is the right option. Okay, part 4 है the question, the quadratic formula is, a quadratic formula here there are 4 options. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. Second option is x is equal to b plus minus under root b square minus 4ac over 2a, and the third option is x is equal to minus b plus minus under root b square plus 4ac over 2a, and the fourth option is x is equal to b plus minus under root b square plus 4ac over 2a. So we know that the x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a is the right option. This one is the quadratic formula, so A is the correct option. Okay, the fifth part is two linear factors of x square minus 15x plus 56 are. There are 4 options, so we will solve this and हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. x square minus 15x plus 56. अब x square minus 7x minus 8x plus 56, x minus 7, here minus 8, x minus 7, so x minus 8 and x minus 7. So here x minus 7 and x minus 8 are the 2 linear factors of this equation, so C is the right option. Sixth part है an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called, the first option is exponential equation, the second one is the reciprocal, radical, and none of these. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर दी गई हो, और रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो, और नन ऑफ दीज इट मींस बी, रेसिप्रोकल इक्वेशन. रेसिप्रोकल इक्वेशन एन इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1 over x, so B is the right option.
ओके, रेसिप्रोकल इक्वेशन। सेवंथ पार्ट इज एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 raised to power x plus 3 raised to power 2 minus x plus 6 is equal to 0 is exponential equation, a radical equation, a reciprocal equation or none of these. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर इन्वॉल्व हो, रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो, रेसिप्रोकल वो होती है जिसमें x और 1/x इन्वॉल्व हो, जिस तरह ये ax के रहा प्लस 1/x प्लस c। सो a इसमें यहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में है। सो a इज द राइट ऑप्शन, दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ओके, अब 8th पार्ट है द सोल्यूशन सेट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज, देयर आर 4 ऑप्शंस। तो हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके, x square is equal to 16 over 4, 4 are 16, x square is equal to 4, it can also be written as 2 square, okay, so we'll take square root in both sides। square root से क्या होगा, ये square यहाँ x रह जाएगा प्लस माइनस 2, सो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब सॉल्यूशन सेट जो है, सॉल्यूशन सेट हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाता है, प्लस माइनस 2, सो द सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 2। सो द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट एन ए ऑप्शन, नॉट बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है प्लस माइनस 2। ये है सॉल्यूशन सेट ऑफ this equation, it means the third one is the right option, okay। अब 9th part है an equation of the form, an equation of the form 2x raised to power 4 minus 3x raised to power 3 plus 7x square minus 3x plus 2 is equal to 0 is called either reciprocal equation, radical equation, exponential equation or none of these। अब reciprocal equation, इसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन ये है कि इसमें a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसमें x है वेरिएबल है, वेरिएबल को रेसिप्रोकल फॉर्म में भी दिया x प्लस 1/x। हम अपने प्रीवियस इसी MCQs में देख चुके हैं कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x देन this equation is remains unchanged, is called a reciprocal equation। so here a is the reciprocal equation, so this one is also, if you can say, अब देखें ये और ये इक्वेशन वही फॉर्म है, देखें 4x की पावर, हाँ 4x की पावर 3 है या x की पावर स्क्वायर, इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन जो हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन है, आइदर दिस फॉर्म और आइदर दिस फॉर्म। रेडिकल इक्वेशन जो है वो अंडर रूट साइन एक्सपोनेंशियल में पावर आ जाती है, जिस तरह ये एक्सपोनेंशियल सी के जी आपका वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में होगा, और नन ऑफ दीज, सो द ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, फर्स्ट पार्ट है जी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने MCQs के ओवरव्यूज़ के लिए हमने एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने डिटेल्स कहा था कि जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन आए, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो सिंपल कह दे कि जी इसको सॉल्व करें, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए सबसे पहले इसको देखें कि इसमें ये इसके फैक्टराइजेशन हो सकती है इसकी, नहीं कि देयर आर 3 मेथड्स। अब 3 मेथड हैं, या तो फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व हो सकता है, फैक्टराइजेशन इसके पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे,
अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2 और सी की वैल्यू है -2। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सो पुट करेंगे वैल्यूज को। x इज इक्वल टू -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2 -4 इंटू 1 और c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। ओके, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 2 जार 8, ओके, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसलिए 12 आ गया, 12 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 12 को हम अंडर रूट 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 4 को हम अगर इस तरह लिख दें 2 का स्क्वायर इंटू इसको अंडर रूट 3, इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। 2 x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये सिंपल रह जाएगा जी, 2 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2। सो x की अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, तो सॉल्व इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी, यहाँ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ओके, इसका सेकंड पार्ट है जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। अब देखें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन आ जाए, जब तक हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि उसको सॉल्व करना। अब देखें यहाँ पर ये इक्वेशन है कोई भी 5x स्क्वायर, ये इधर आके -15x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखें कि यहाँ पर उसने कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं दी कि इसको सॉल्व करें। अब यहाँ उसने कह दिया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो याद रखें कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो हमने उसी मेथड से, हम बाउंड हैं कि हम उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 5x स्क्वायर, अब ये -15x इज इक्वल टू 0, अगर 5x यहाँ पर कॉमन ले लें तो x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5x, अब देखें ये बेसिकली ये एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। 5x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x -3 इज इक्वल टू 0। अब x 0 आइदर डिवाइडेड आइदर मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 इज 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 एंड 3 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब थर्ड पार्ट है जी, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसको सिंपल यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 4 और यहाँ प्लस आ जाएगा x प्लस 4। ओके, अब 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी x। ओके, सो इसको 3/1 लिख लेंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x और नीचे x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 3/1, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 48। ओके,
so here 3x square minus 48 minus 2x is equal to 0. ओके, सो इसको 3x square minus 2x minus 48 is equal to 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। किस तरह? ax square प्लस bx प्लस c, माइनस माइनस आना है तो माइनस 2 उसका कोफिशिएंट x का आ जाएगा माइनस 40। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ओके, अब फोर्थ पार्ट है राइट द नेम ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो हमने नाम मेंशन कर दिए कि फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, फिफ्थ पार्ट है जी सॉल्व 2x माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 4। अब इसको हम 2x माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2x माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 2, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट लेंगे 2x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 2। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 और 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। प्लस माइनस है तो 3 ओवर 2 प्लस में आ जाएगा और माइनस में भी आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 ओवर 2, इधर 2x है माइनस 3 ओवर 2 है, ये माइनस उधर जाके प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पर 2x है, या एलसीएम लेंगे, यहाँ माइनस 3 प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 ओवर 2, 2 2 आर 4। ओके, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2, यहाँ माइनस 1 रह जाएगा। ओके, सो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर 2 1, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। ओके, सो द सॉल्यूशन सेट इज 1 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब इसका 6 पार्ट है सॉल्व 3x प्लस 18 अंडर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। एक बात याद रखें, जब भी अंडर रूट साइन में आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इसका जब भी सोल्यूशन सेट आप फाइंड आउट करेंगे तो उसको आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके उसको चेक भी करना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर अंडर रूट साइन है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर।
अब यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसकी चेकिंग करनी है हमने। इस ओरिजिनल इक्वेशन में इसको 1 बाय 1 पुट करके देखे हैं। चेकिंग क्या होगी, अच्छा ये x -3, अब कुछ इसको पहले -3 इसमें पुट करके देखेंगे। -3 अब अंडर रूट आ जाएगा जी 3 इंटू -3 प्लस 18 इज इक्वल टू -3, 3 3 आर 9, -9 प्लस 18 अंडर रूट इज इक्वल टू -3। ये रह जाएगा 9 इज इक्वल टू -3 और 9 3 का स्केयर है तो 3 इज इक्वल टू -3। इट मीन्स कि ये वाला x की पावर -3 ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके अब x की वैल्यू अब 6 है, वो 6 इसमें पुट करके देखेंगे। 3 इंटू 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 6, 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 6। अब 18 प्लस 18 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स ये x की वैल्यू -3, x इज इक्वल टू 6, ये जो 6 इसकी वैल्यू है 6, ये इसका सॉल्यूशन सेट है और जो -3 है वो एक्सट्रानियस रूट है, इज एन एक्सट्रानियस रूट। ओके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, उसमें सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना है, रेडिकल इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, और वो डेफिनेशंस ऑलरेडी पीछे दिए हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो वो सिंपल वहाँ डेफिनेशंस है, आपने उनको चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कितने हैं जी नंबर ऑफ मेथड, 3 मेथड्स हैं, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, आर 3 मीन्स के 3 मेथड्स हैं जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हमने अपने लेक्चर में एक बड़ी डिटेल से क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाय फार्मूला इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। ओके, अब द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज करते हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो हमारा सोल्यूशन सेट आता है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द, वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो है जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसका सोल्यूशन सेट ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसका। अब सोल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है 25x स्क्वायर माइनस 1। अब सिंपल इसको हम 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 25 और x यहाँ पर x को इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ओवर 5, इसको होल का स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे, प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 5। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 5। ठीक है, ये हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वेरिएबल जो है वो वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ गया, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। exponential equation. Okay, the solution set of the equation x square minus 9 is equal to 0 is। अब इसको solution set हम find out करेंगे। अब solution set find out x square is equal to 9 और x is equal to plus minus 3। अब यहाँ पर इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन साइड्स, इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। सो यहाँ पर सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। हमने इसको थोड़ा सा फाइंड आउट भी कर लिया कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब आ गया जी एन इक्वेशन of the type x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus x raised to power 2 plus x plus 1 is called reciprocal equation। अब इसको reciprocal equation भी कहते हैं। हमने पीछे इसमें डिटेल से पढ़ा है कि reciprocal equation। ओके, अब नेक्स्ट वन है जी अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। अब हमने कहा था कि जहां पर अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो जाए वहां पर हम सोल्यूशन सेट की वैल्यूज को पुट करके, हमने अभी इससे प्रीवियस जो है वो क्वेश्चन में देखा था, वो जो रूट जो भी वैल्यू एक्स की उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो तो उसको एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। एक्सट्रानियस रूट। ओके, अब लास्ट है जी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन। अंडर रेडिकल साइन, अंडर रेडिकल साइन का मतलब है कि वो अंडर रूट फॉर्म में आएगा, तो अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ओके, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने मिसलिनियस इक्वेशन भी कर लिया है। अब हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।